Assalamu alaikum to everyone. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Okay, just wait a minute so the students can join it. Today we'll talk about two very important topics. Indeed, one very important topic in two parts, and then inshallah I'll tell you a few things about writing skills, and then I will give you the topics of presentation. So media discourse analysis. Today we are having the classes of media discourse analysis. MDA means media discourse analysis. So media discourse analysis, and today our topic is interpolation. Have you ever heard, or has anyone ever heard this word interpolation? Interpolation, has anyone ever heard? Yes, answer should be in yes or no. If you don't Sir. know, so you have never heard about interpolation. So today, inshallah, you'll learn things about interpolation. As I told you that in media, everything is communicates something. There are two types of media. One is print media, and the second one is electronic media, and they both communicate. Whatever we have in written form, you know very well, that is called print media. Any other thing that you know about print media? Sir, everything which is in written form, newspaper, book, Books, magazines. Journals, magazines. Okay, and pamphlets, leaflets, right? Articles, Wall chalking, right? And you know, whatever you see nowadays, you'll find something written on it. Even players who are playing in the playground, their t-shirts are full of different types of logos, so they are also a source of advertisement. Whatever we buy nowadays, we can see on that particular object a kind of label or a kind of, you can say, logo. It is also called print media, written communication. So print media has very wide scope. It has a very wide scope, and it is cheaper than which media? It is cheaper electronic media. Electronic media. It is cheaper than electronic media. For example, if you want to get something published, or if you want to advertise something on print media, so you can do it, or you can do it through newspapers, or even you can make something and you can get photocopied and you can distribute, such as we know that outside shops or in the street or sometimes outside masajid, we see pamphlets or forms or different types of, you can say, things. They are also the source of advertisement. So anything that is in print form, such as newspaper, books, pamphlet, leaflet, booklets, wall chalking, and there are many others, they all are the forms of print media, because they are communicating something to us.
Then electronic media. What is very important about electronic media? What is That it's not costly, it's available. TV is available everywhere, phones are available, we can watch anytime, anything, any news. okay? But what about our you can say advertisement? You know, if you don't pay internet bills, you can't get internet. Yes, sir. What about things that you want to advertise? Yes, if you want to advertise something Through on, commercials we advertise. yeah, commercials we advertise, right? And nowadays we have social sites where we can advertise our products or our things or whatever you want to show to the whole world, so we can do it over there. But this is actually not, this is not easy as we think. So all types of media that are in screen form that we see on the screen, they are called electronic media. And we have discussed it earlier, just I am reminding you. Whatever comes on the screen, mobile phone, computer, and television, they all are the forms of electronic media. And electronic media has wider scope than print media, but it is a little, or it is expensive, more expensive. The print media is not that much expensive, but electronic media is very expensive. Electronic media nowadays comes in the forms of computers, tablet, and laptops and desktops like this. Then mobile phones, MP3 players. Nowadays we have got advanced technology. So mazid cheezes mein aage video games system, radios, and television. Technology has spiked to record highs within the last decade, thus changing the dynamic of communication. That's why many things have changed. The spike in electronic media really started to grow in 2007. ये 2007 के बाद से तकरीबन इस पर जबरदस्त तब्दीली आई और तेजी आई when the release of the first iPhone came out. So this is what we have media. Then you will find oldest form of media. So in oldest form of media, you will find publication including newspaper, journals, magazines, books, and reports. It is the oldest type, and despite suffering since the emergence of the internet, it's still used by a major proportion of the population. Still, we read newspapers, we read magazines or journals and books and all such things. It is also an inexpensive source of communication and information. इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और ज़्यादा यानी कि information भी आप अच्छी खासी पहुंचा सकते हैं. And it is a very powerful source of communication. Magazines. What do you know about magazines? Yes, what do you know about magazines? We all buy magazines, we all have certain magazines. So what do you know about magazines? Sir, magazines include all the important like news, which are the main news about the world or everything that are in magazines. Means not you can say everyday news, but it is something that give us information about important news which are going on at the present time. Any important issue or any important event. For example, T20 World Cup. You'll see that in this week's magazine. So magazines, there are different types of magazines: weekly magazines, monthly magazines, quarterly magazines. So these are different types of magazines, and you'll find magazines, especially their front cover. Especially their front cover, you will find, different, and it is appealing or attractive. Whatever the magazine is, for example, if the magazine is about family magazine, तो उसमें आपको family से related चीजें नजर आएंगी. If the magazine is about women, or if it is related to feminine topic, तो उसमें आपको women जो है सामने front पर नजर आएगी और उसी की कोई इस तरह की मतलब चीजें नजर आएगी जिससे women का पता चलेगा this magazine is about women. Similarly, if the magazine is about children, so you'll find children pictures, or you'll find things related to
children on the magazines. So this is how you'll find books and magazine. Books जो है वो ज़ाहिर महंगी भी होती है और फिर उसका और साफ होता है, जबकि मैगजीन्स होती है वो वीकली और बाज़ औक़ात तो हफ्ते में 2 मरतबा भी आपको मिल जाएगी और मंथली तो होता ही है. Common means of electronic media. If you see common means of electronic media, we'll see televisions, mobile phones. They are very common sources of electronic media. Then you'll find achieve a broader meaning nowadays as compared to that given it a decade ago. आज से अगर हम 10 या 15 साल पीछे जाएं तो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट और इतना मतलब कम उसमें नहीं मिल रहा था. It was very expensive and very it was not as fast. For example, we didn't have everyone did not have Android phones. आज तकरीबन 10-15 साल पहले हर एक के पास Android phone नहीं था. हर एक से मुराद मैक्सिमम लोगों के पास Android phone नहीं था. But nowadays you can see that many people have Android phone, and with the help of this thing, they, can easily advertise whatever they want, or they can easily communicate with anyone in the world. मुझे भी याद है कि चंद महीने पहले एक शख्स जा रहा था नॉर्दर्न एरिया में, तो रास्ते में उसका बैग गिर गया था कहीं ना, तो उसने जो है एक वीडियो बनाई और उस पर अपील की लोगों से कि जिस किसी को बैग मिल जाए तो मुझे खुदारा वापस कीजिएगा. उसने मेरे इतने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स पढ़े और उनके किसी मतलब वालिद का इलाज चला था, उसकी भी फाइल्स वगैरह पड़ी थी. बहरहाल उसने जब ये अपील की तो वो अपील जो थी उसकी मिनटों या चंद घंटे में वायरल होगी और हज़ारों लोगों ने इसको देख ली और बिला आखिर उसको वो बैग अगले दिन मिल गया. सो इट वाज द पावर, और इट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. लेकिन 10-15 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी. Earlier there was multimedia, once only a piece of software used to play audio and video like this. So following this it was CD and then DVD and then camera of 3G, and then now we have 4G as well. So this is how you'll find electronic media has progressed a lot. Now the topic, the important thing that we have discussed is interpolation. Now what is interpolation? So media text always address somebody. When you see media text, जब आप मीडिया के टेक्स्ट को देखेंगे तो उसमें हमेशा आपको लगेगा कि किसी ने किसी को एड्रेस कर रहा है. और मैंने आपको कुछ इसके टर्म्स बताए थे. कैन एनीवन टेल मी और रिमाइंड मी ऑफ दोस टर्म्स? Yes, can anyone remind me of those terms? Yes, Arya, आप में से कोई इसको रिमाइंड करवा सकता है? सर कैसे मतलब एड्रेस कर रहे हैं? टारगेट ऑडियंस. मीडिया में टारगेट ऑडियंस का मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि whatever product is made, they have a specific target, they have a particular target. For example, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि if there is an ad of soap, Lux soap, so you can see there will be some glamour in that ad. You'll find, second thing, English language is used. Thirdly, you'll find any celebrity is used for the ad. ऐसे ही होता है ना भाई, क्योंकि उनका टारगेट जो ऑडियंस है वो क्या है, कौन है उनके टारगेट ऑडियंस? गरीब तबका, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, कौन सी क्लास है? अपर क्लास. अपर क्लास को नॉर्मली वो टारगेट करते हैं. साबुन भी महंगा होता है उनका, फिर वो दे यूज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं. बाज़ औक़ात बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो आप नॉर्मली लोगों को नहीं मालूम होता. फिर उसके बाद उसमें जो है ग्लैमर का इस्तेमाल भी होता है, और इसके अलावा उसमें फिर जो है वो कोई सेलिब्रिटी, और नॉर्मली यू विल फाइंड female women over there, right? Why? Because their target audience is especially women and their beauty. So this is how they communicate their target audience. So what is interpolation? Interpolation is the constitutive process where individuals acknowledge and respond to ideologies, thereby recognizing themselves as subjects. अब interpolation क्या है? The process by which we encounter cultures or ideologies, values and internalize them. हम उसको क्या करते हैं? काउंटर करते हैं
और फिर उसको इंटरनलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मीडिया का हर टेक्स्ट जो है वो किसी ना किसी चीज को एड्रेस करता है। दे इनवाइट द रीडर और व्यूअर, रीडर को और व्यूअर, यानी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रीडर हैं, और अगर आप देख रहे हो उसको जैसे टीवी पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो वो व्यूअर कहलाते हैं। सो आइदर यू आर रीडर और व्यूअर, सो दे इनवाइट यू to participate and seek to engage here or him in his specific practices or reading or viewing, ताकि आप पार्टिसिपेट करें या अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर एक इश्तिहार आपके पास है बालों का, ठीक है, उसमें दिखा रहे हैं कि ये शैम्पू इस्तेमाल करें तो इससे क्या होगा, आपके बाल जो है वो गिरना रुक जाएंगे। अब ये किसको अपील करेगा? जैसे मिसाल के तौर पे पेंटीन वालों का है एंटी हेयर फॉल, who will this attract? Women. Of course it will attract to both genders, men and women, क्योंकि दोनों के साथ बाल गिरने का मसला होता है। तो क्या है कि इस पे वही तवज्जो देगा जिसके बाल वाकई गिरते हैं। जिसके बाल गिरते ही नहीं है, जिसके बाल सिरे से ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये एड क्या होगा, यूजलेस होगा ना। he is not their target, he is not their audience. So the one who has hair and that he has hair fall problem, so he will be attracted to that particular ad. तो अब उस ad को देखा जाएगा कि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो जैसा वो ad होगा उस लिहाज से उसकी अट्रैक्शन होगी। They may do this directly. Let us transform you. You का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन जो है you का इस्तेमाल करेंगे। और they may adopt less direct, possible more subtle or approaches, और हो सकता है वो less direct आप adopt करें। So in part, the approach adopted will be a consequence of the syntagmatic structure, argument, montage और narrative. उसमें आपको पास या आर्गुमेंट हो सकता है या मोन्टाज हो सकता है। मोन्टाज को इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये कलेक्टिव कुछ चीज़ों का मिलाप होता है, वो हो सकता है, या नैरेटिव हो सकता है, कोई मतलब ये नैरेटिव बयान किया जाता है। आजकल जो लिप्टन का एड चल रहा है, अगर आप उसका पूरा एड देख लें तो उसमें आपको क्या मिलेगा? पूरा एड जो क्या है, they are showing us different people and they are showing us different one family, and but they are एक बिग फैमिली है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों को दिखा रहे हैं, कपल्स को दिखा रहे हैं कि हाउ दे आर गेटिंग फ्रेश बाय हैविंग टी। उनमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन चाय मिलती है तो वो क्या होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर शोइंग ऑल दीज थिंग्स, but it will also be influenced by the context or situation within which communication takes place. तो जिस सिचुएशन में वो कम्युनिकेशन होती है उससे भी काफी उस पर असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्टोरी टेलर और द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन ऑडियंस। बाज़ औक़ात आपको स्टोरी टेलर वहाँ नहीं नजर आएगा, बाज़ औक़ात ऑडियंस नजर नहीं आएगी आपको। So this is a complex area and it has given rise to important debates in media studies. जो interpretation इसमें it has given rise to important debates, बहुत सी important debates इसकी वजह से हुई in media studies about the nature or of our involvement in media text. Now there is a book, I have already recommended you that book, Mediation, Text and Discourse in Media Studies. उस किताब के अंदर जो उन्होंने एग्जाम्पल दी वो दी हुई है कवर गर्ल की। What is called cover girl? कवर गर्ल, कभी नाम सुना है कवर गर्ल का? सर जो नजर ना आ रही हो। नहीं, कवर गर्ल, कवर गर्ल कभी सुना है इसके नाम कवर गर्ल का आप लोगों ने? नो सर, नहीं सुना। और किसी ने अगर सुना कवर गर्ल? कवर गर्ल एक्चुअली कवर गर्ल इज अ यंग वुमन हुज फोटोग्राफ इज ऑन द फ्रंट ऑफ अ मैगजीन। खातून होती हैं, एक नौजवान खातून होती है जिनकी तस्वीर किसी भी मैगजीन के फ्रंट पर होती है, दैट इज कॉल्ड अ कवर गर्ल। तो इस बुक में जो है एग्जांपल दी हुई है कवर गर्ल की दी हुई है, और कवर गर्ल इज एन अट्रैक्टिव वुमन हुज फोटोग्राफ अपीयर्स ऑन द फ्रंट ऑफ अ मैगजीन। तो इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कवर गर्ल की। तो उस हवाले से क्या कहते हैं कि द कवर गर्ल एडवर्टाइजमेंट इज एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट माइट फर्स्ट अपीयर।
clearly it does make a direct appeal to the reader and invites her to part with her money. मिसाल के तौर पे आप फेयर एंड लवली का एड देख लें, या आजकल तो कोई सा एड ऐसा नहीं जिसमें मतलब खवातीन शामिल ना हो, तो आप कुछ एड ऐसे होते हैं जो सिर्फ खवातीन के लिए, तो आप चाय का एड तो सबके लिए होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम एड्स व्हिच आर ओनली रिलेटेड टू वुमेन। अब वो फेयर एंड लवली का जो एड है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कवर या मिसाल के तौर पर मैगजीन के ऊपर वो एड दिया हुआ है, तो उसमें क्या आपको नजर आएगा, यू विल सी अ वुमन हु इज अट्रैक्टिव, यंग, एंड शी इज famous also. या फेमस आल्सो, क्योंकि अगर इफ शी इज नॉट फेमस तो उसको नहीं देंगे। क्यों ये सब चीजें क्यों होती है? व्हाई डू दे हैव ऑल दिस थिंग, फेमस यंग सेलिब्रिटी यंग वुमेन ऑन द फ्रंट पेज? व्हाई? बिकॉज क्यों, कोई मिसाल कोई कपड़ों का ऐड होगा तो उसमें भी आपको इस तरह से खवातीन नजर आएंगी, और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया इसमें भी खवातीन नजर आएंगी, तो यू विल फाइंड देयर पिक्चर ऑन द मैगजीन, दैट इज कॉल्ड कवर गर्ल, इसको कहा जाता है कवर गर्ल। मैंने नेट से एक आध उठाई है, कोशिश की है अपनी तरफ से कि बिल्कुल मतलब उसमें चीज़ें ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ मुश्किल से मिलती है। तो ये एक मैंने उठाई है आपके सामने, एक कवर गर्ल एडवर्टीजमेंट्स। आप देख सकते हैं कि इसमें सामने एक खातून है जिनकी उम्र 71 ईयर्स है, शी इज 71 ईयर ओल्ड एंड शी इज अ कवर गर्ल एंड शी इज डूइंग व्हाट, ये किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या दिखाना चाह रही है अपने ऑडियंस को? Ageless Foundation. Yeah, ageless. She is trying to attract her audience by showing that I am 71 years old, still my skin is very tight and I still look less than 50. Young. ठीक है, अब ये अपीलिंग है, दिस इज द अपील ऑफ मीडिया एंड दिस इज हाउ दे आल्सो मैनिपुलेट लैंग्वेज, लैंग्वेज को भी इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट एज फीचरिंग में क्या कह रहे हैं, व्हाट एज, छोटे छोटे आपको उसमें स्लोगन मिल जाएंगे, व्हाट एज यानी कि कौन सी उम्र, जिस उम्र पे भी तुम होगे यू विल लुक एजलेस, मींस यू विल स्टिल लुक यंग। इस तरह से एक खातून की तस्वीर है यहाँ पर, कवर, ये भी कवर गर्ल है एंड शी इज डूइंग व्हाट, ये यहाँ पे किस चीज को हाईलाइट कर रही है? Eyes. आईज, Mascara. या मतलब कहने का है अब जो इसके ऑडियंस है वो इन चीजों को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगी ना। किसी के जेब से पैसा निकालना हरगिज हरगिज आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। तो मीडिया की दुनिया में फिर ये तरीक़ेकार है, लैंग्वेज अलग, हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टैक्स इन मीडिया, एवरीथिंग कंसिडर्ड टैक्स, सो ऑल दीज थिंग्स हैव सर्टेन मीनिंग्स एंड दे कम्युनिकेट समथिंग टू अस। मजीद जो है कुछ आई हैव टेकन सम एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम पाकिस्तानी एड्स एंड यू कैन सी हियर कवर गर्ल फेयर एंड लवली फाउंडेशन, किसी मैगजीन के आप या आप न्यूज़पेपर में ये एड भी आपने देखा होगा, खुद को चैलेंज करो, खुद को चैलेंज करो, गिव अ मिस्ड कॉल, खुद को चैलेंज करो, ये इन्होंने एक स्लोगन बनाया है, खुद को चैलेंज करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Nothing is impossible. खुद को चैलेंज करो कैसे? नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसके अलावा और कुछ? सर You can do everything. हो रही है तो आप खुद को और चैलेंज करके उसको अच्छा बनाओ। तो या And खुद you को can do anything. यू कैन डू एनीथिंग, यानी कि दुनिया में अपने आप को फिट रखना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली इफ यू वांट टू लुक फ्रेश एंड ऑल सच थिंग्स, सो इट इज आल्सो इट इज नॉट इजी। तो वो ये बता रहे हैं खुद को चैलेंज करो, इन्होंने ये एक स्लोगन दे दिया एंड दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट देयर ऑडियंस एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट देयर टारगेट, जो इनके लोग हैं या जो इनको अब ज़ाहिर इनकी जो टारगेट है वो कौन है, बूढ़ी खवातीन तो होंगी, नई नई बच्चियाँ होंगी छोटी उम्र की, इनकी खवातीन जो है वो कौन है, यंग गर्ल्स, और इसके अलावा ये इनके ज़्यादा टारगेट है। अब इस एड में कोई लड़का शामिल नहीं है, कोई लड़का नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है दिस प्रोडक्ट इज नॉट मेड फॉर बॉयज, दिस प्रोडक्ट इज नॉट मेड फॉर मैन, इट इज स्पेशली फॉर वुमेन, दैट इज व्हाई यू कैन सी ओनली वन जेंडर। अच्छा, नीचे अगर आप आके देखें तो करो नेस्कैफे पिक फॉर अ स्ट्रॉन्ग केक। अब इस जुमले में ये जो इनका स्लोगन है इसमें यू कैन सी इंग्लिश एंड उर्दू बोथ आर टुगेदर,
ये भी एक तरीका कार होता है. दिस इज अगेन अ वे टू अट्रैक्ट द ऑडियंस और टारगेट ऑडियंस. नाउ दिस कॉफी इज समथिंग दैट इज फॉर एवरीवन. ये तो आप सबके लिए. करो नेस्कैफे पिक फॉर अ स्ट्रॉन्ग किक. क्या आपको इसमें क्या लगा? व्हाट डू यू एनालाइज? आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? टेल मी, हाउ डू यू एनालाइज दिस मीडिया टेक्स्ट? We should use Nescafe to be strong, get energy. वो तो सही है, लेकिन जिस तरह इन्होंने एक तो ये पिक्चर के जरिए, शी इज अ फेमस एक्ट्रेस आई थिंक, उनको She's a इन्होंने famous celebrity and she's using it and she she's is energetic, strong. she is okay, she is energetic, right? And she is famous nowadays and she is taking cafe. तो बहुत से लोग होते हैं वो ये सोच रहे थे कि यार ये बंदा, ये जैसे मिसाल के तौर पे एक इश्तिहार आ रहा है आजकल, आपको बहुत से बिल्डर्स के इश्तिहार मिलेंगे. जब कुछ इश्तिहारों में टीवी कमर्शियल्स में यू विल फाइंड सम सेलिब्रिटीज लाइक कोई क्रिकेटर आ गया, शायद अफरीदी आ गया, ठीक है, और आके वो कह रहा है कि इस जगह आप प्लॉट लें, बहुत अच्छा है ये वो. तो जो शायद अफरीदी को लोग वो से जानते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उस पर एतमाद करके वहाँ जगह या उस जगह को खरीदने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज हाउ दे डू व्हाट दे ट्राई टू सेलेक्ट certain celebrity and then they give message in their own style, in their own way. उनको ये नहीं कि वो स्टाइल चेंज करेंगे, क्योंकि people know them very well. अब एक एड बाबर आजम का आता है, उसमें बाबर आजम कैसे बोलता है? अपने अंदाज से बोलता है, लेकिन लोगों Yes, को sir. उसके अंदाज से मतलब नहीं है, लोगों को उस सेलिब्रिटी से मतलब है. लोग उसको देखते हैं, उसको देख के उसको फॉलो करते हैं. हाँ यार, ये जब कह रहा तो वाकई क्या. सेलिब्रिटी को भी ज़ाहिर है वो भी सोच समझ के ही लोगों से बात करते होंगे. जहाँ पे उनको डाउट होता होगा तो वो पैसों की खातिर अपने आप को ज़ाहिर थोड़ी करें, वो फिर उस लिहाज से उसको करते हैं, बिकॉज दे नो दैट देयर फैन फॉलोइंग इज ग्रेट, सो दे विल गेट बेनिफिट ऑफ इट. अभी हाल ही में मैंने सुना था कि शोएब अख्तर का एक मामला हुआ था जिसमें PTV had a great loss, very huge loss, and they have I think they have filed a case against them of Harjana fine, I think of 10 crore rupees. तो बाद में पता चला कि उनकी अच्छी खासी सैलरी थी और वो जिस दूसरे चैनल पर जब चले गए किसी वजह से उनके मामला खराब हुए, तो उससे चैनल को बहुत नुकसान हुआ, PTV को. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंस. हर्बल डिटोल, सेहतमंद जल्द का मुकम्मल एहसास. सेहतमंद जल्द का मुकम्मल एहसास. दिस इज अ स्लोगन व्हिच दिस दिस शॉप कंपनी इज यूजिंग फॉर डिटोल, और ऊपर सबसे लिखा हुआ हर्बल. तो जो भी लेने वाला होगा उसको ये चीज देखकर वो अट्रैक्ट हो जाएगा कि यार ये हर्बल है, यानी कि इसमें हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है एंड इट इज गुड फॉर हेल्दी स्किन. यहाँ भी खातून ही की तस्वीर दे दी. आजकल खातून को ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है. इसके पीछे भी एक जदीद मेथड है. And that बस वो मतलब लोगों का जहन है ना, माइंड सेट को देखा जाता है. आपको ये साबुन इन चीज़ों के इस्तेमाल बहुत कम ही नजर आएंगे. मेल्स यू विल फाइंड मोस्टली फीमेल्स. So this is cover girl advertisement. So you'll find such things on magazines as well, or on even newspapers, and they all communicate something, and you'll find language over there, and even picture is also a text. Okay, if we analyze cover girl advertisement, so we can see that cover girl advertisement is actually more complicated than it might first appear. इसको अगर आप एनालाइज करने चलें तो बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है. कल्चरल डिफरेंस भी होता है. इन आवर कल्चर थिंग्स आर अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर, बट इन अदर कल्चर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब मैंने नेट से जब उठाने चाहा तो उसमें काफ़ी ऐसी थी एडवर्टीजमेंट जो कि दुरुस्त नहीं थी हमारे लिए ना, तो उसको फिर छोड़ना पड़ा. और इसके बाद जो हमारे कॉन्टेक्स्ट थी उनको मैंने उठाया. तो इट इज समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एज वेल. Clearly, it makes a direct appeal to the reader and invites her to part with her money. Part with her money means to spend money. जैसे मैंने आपसे कहा, it is very difficult to earn or to get money out of the pocket of someone else. Direct appeal is supported in interesting ways by other elements within the text. कुछ और एलिमेंट भी होते हैं, जैसे the text syntagmatic का स्ट्रक्चर जो होता है. जैसे अगर आपको गालिबन याद हो, मैंने एक दफा आपको एग्जांपल दी थी कि कुछ लैंग्वेज सेंटर्स का जो है वो स्लोगन ये होता है. There are some language center and their slogan is what? Learn English in 3 months. देखा होगा आप लोगों ने. yes, sir.
तो ये जब कोई जिसको अंग्रेजी सीखनी होती है या जिसको जरूरत होती है अंग्रेजी की, वो इस स्लोगन को देखेगा तो क्या करेगा? फिर वो जाएगा। वो उस लैंग्वेज सेंटर में जाएगा और जाके एडमिशन लेगा। ऐसे है ना भाई, लर्न इंग्लिश Yes, इन sir. 3 मंथ्स। और आजकल उन्होंने एक और तरीका भी निकाला हुआ है कि साथ साथ वो आपको तस्वीरें कुछ स्टूडेंट्स की जो कामयाब है उनके आपको दे देंगे, जगा देंगे, बोलेंगे, और वो अपने थोड़े कमेंट्स लिख देते हैं, दिस इज हाउ दे आल्सो। और जब आप उनकी बुकलेट लेंगे सो यू विल रीड देयर बुकलेट एंड यू विल दे विल टेल, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्सेस स्टोरी ऑफ दोज स्टूडेंट्स, एंड यू विल बी वेरी मच मोटिवेटेड। लेकिन उनका जो मेन स्लोगन होता है वो क्या होता है, लर्न इंग्लिश इन 3 मंथ्स। इसको देखकर बहुत से लोग जो हैं वो उनके इसमें आते हैं। तो ये भी अपनी तरफ से लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आप सीख सकते हैं 3 महीने में भी, और 3 साल में भी सीख सकते हैं, 3 हफ्ते में भी सीख सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहीं लिखा कि लर्न इंग्लिश कंप्लीटली इन 3 मंथ्स। कहीं एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया कि इससे आप ये कहते हैं कि मुकम्मल, मुकम्मल क्या होती है? मुकम्मल तो आज से कोई भी कोई जबान सीखा तो इतनी बंदा सीख लेता है कि आसानी से कम्युनिकेशन हो जाए। तो वो भी उनके लिए लर्न इंग्लिश इन 3 मंथ्स, आप 3 हफ्ते में भी सीख सकते हैं, 3 दिन में भी सीख सकते हैं, 3 महीने में भी। सीखने में क्या है, कुछ भी आप थोड़ा सा सीख लें, सीख लिया ना आपने। कहीं ये नहीं लिखा कि आप पूरी अंग्रेजी सीख लें या पूरी इतनी अंग्रेजी सीख लें, लर्न एज मच इंग्लिश एज मच यू नीड टू कम्युनिकेट विद समबडी एल्स, कहीं ऐसा नहीं लिखा। तो वो भी अपनी तरफ से लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपने लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके फायदा उठा रहे हैं, और जो पढ़ता है इसको तो वो भी इससे अट्रैक्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको नजर आती हो? कुछ आप देखेंगे कोचिंग सेंटर्स वालों का स्लोगन बना होता है या कि क्या क्या कहते हैं, गेट 90% मार्क, गेट 90% मार्क्स, यानी कि वो इतनी श्योरिटी से साथ कह रहे होते हैं कि आप अपना एडमिशन ले लें, आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे। गेट एडमिशन, गेट एनरोल्ड इन, ऑब्टेन 90% मार्क्स, 95% मार्क्स। 95% मार्क्स बहुत होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते। तो वो स्लोगन ऐसे लगा रहे हैं कि आप लोग जो भी आएंगे एडमिशन लेने के लिए, आप लोग इतने मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस चक्कर में भी चले जाते हैं, बाद में होता कुछ और है। So there are different types of slogans and aids, and this is how language is manipulated. अब ये जो इंटरप्रिटेशन का जिससे कॉन्सेप्ट दिया था, कौन था? ये फ्रेंच फिलोसोफर था जिसका नाम था अल्थूसर। He argued that ideologies depend for their effect, यानी जो भी सिस्टम हम बनाते हैं वो अपने डिपेंड करते हैं on making an appeal to the attention of the individual, यानी कि वो अपील करते हैं to the attention of the individual for their effect, and this is an appeal which cannot be ignored। और ये वो अपील होती है जिसको हम किसी भी लेवल पर इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है इग्नोर करना। जिसको जो जरूरत होगी वो उसको लाजमी ट्राई करेगा। It is if the appeal is successful, then the individual might begin to define his or her identity in terms of the meaning system which is an offer। Althusser called this process interpellation। Althusser जो है इस प्रोसेस को, जो अपीलिंग प्रोसेस होता है, पे एक्सेप्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहता है? इंटरप्लेशन। The interpellation of individuals as subjects। In this process an address is made to the individual। इस प्रोसेस में एक उसके साथ उसको मुखातिब किया जाता है, and who perhaps only for a moment respond, जो उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। So Althusser complicates the relation। Once again ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था अल्थूसर, जिसने इस आइडियोलॉजीज को, यानी कि जो एक सिस्टम उसने बताया है जो डिपेंड करता है फॉर इट्स इफेक्ट ऑन मेकिंग एन अपील टू द अटेंशन ऑफ, यानी कि ये एक अपील है। यानी कि आप जो भी मीडिया में एड बनाएंगे या एड मीडिया में जो आप टेक्स्ट यूज करते हैं एड के लिए, तो उसमें ये अपील क्रिएट करते हैं टू द अटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल। वो अपील डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, वो अपील फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो इस अपील यानी कि किसी भी लेवल पर इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यानी कि आप जब भी इस एड को देखेंगे, आपसे इसका अगर ताल्लुक कनेक्शन होगा तो आप उसको देखेंगे, उससे मुतासिर भी होंगे, हो सकते हैं, तो इग्नोर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर इफ आई लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी एड आएगा तो मैं उसे देखूंगा। सिमिलरली इफ आई लाइक ड्रेस, सो आई विल ट्राई टू सी दैट। मोबाइल की मिसाल लेते हैं कि अगर ड्रेस से हमारे मतलब की कोई चीज होती है तो हम उसको लाजमी देख लेते हैं, पसंद ना पसंद बात की बात है। सो दिस इज एन अपील व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड।
if the appeal is successful, then the individual might begin to define. अगर वो उस अपील जो है उसको मतलब ये वो उस अपील को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या होगा कि वो इसको डिफाइन करेगा in terms of meaning which is offered. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये जो फिलोसोफर है इसने क्या कहा है, इंटरप्लेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि एक चीज बनी है, उसने आपको अपील की और आप उस अपील ने अगर आपको अट्रैक्ट कर दिया और आप उसमें कामयाब हो जाता है आपको अट्रैक्ट करने में, और फिर आप उस पर अपनी तवज्जो देते हैं. तो ये सारा जो एक प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्लेशन. In this process, an address is made to the individual, यानी कि आपसे एक किस्म का खिताब हो रहा होता है, who perhaps only for a moment responds, यानी कि वो जो आप एड देख रहे होते हैं या आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, वो आपको जो है एक तरह से एड्रेस कर रही होती है, and you respond for a moment. This process is called, according to this French philosopher, interpolation. बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये जो प्रोसेस चल रहा होता है इसको ये कहते हैं. मजीद वो क्या कहता है कि इट कॉम्प्लिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेशन एंड सब्जुगेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंटरप्लेशन प्रोसेस. क्या चीज डोमिनेट कर रहा है, क्या चीज सब्जुगेट कर रहा है. Where individuals recognize themselves as subjects through ideology, thus illustrating how subjects can be complicit in their own domination. तो कहीं कोई चीज डोमिनेट कर रही होती है, डोमिनेट, और कहीं वो खुद उसका जो है उसका सब्जेक्ट बन जाता है. He gives example of a police officer shouting out, "Hey, you there," in public. Upon hearing this exclamation, an individual turns around, and by this mere 180-degree physical conversion, he becomes a subject. अब क्या कह रहे हैं कि मिसाल पुलिस वाले ने कहा, "Hey, you there," तुम वहां, कहते ना पुलिस वाले, "ओए," और हमारे कॉन्टेक्ट में थे, "ओए जरा." तो पब्लिक में जब वो कहता है, पुलिस वाले ने कहा, तो आपने क्या किया, अपने आप को घूम के आपने उसकी तरफ देखा, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए. He becomes a subject. आप 180 डिग्री में उसको घूम के देखते हैं, अगरचे वो आपको नहीं क्या कहा, आपके साथ किसी और को कहा होगा, लेकिन आप भी उसको घूम के देखते हैं. So this is what is called, you are now the subject of that police officer. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और क्या कहेंगे उसे हम, कभी डोमिनेशन होती है, कभी सब्जेक्ट, कभी हम पर वो एड आ जाते हैं, कभी हम उसको नहीं लेते सीरियस. सो दिस इज व्हाट इंटरप्लेशन इज. इसको मजीद डिफाइन करेंगे मोड्स ऑफ एड्रेस पे. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द मोड्स ऑफ एड्रेस व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरप्लेशन. As I told you, there are different types of modes like direct mode, indirect mode, formal mode, informal mode, serious mode. कौन सा एड है जिसमें डायरेक्ट जो है अपील कर रहा है, कौन सा एड है जिसमें इनडायरेक्ट अपील हो रही है, कौन सा एड है जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है या इस तरह से इनफॉर्मल का इस्तेमाल हो रहा है. दिस इज व्हाट we'll discuss. So I am starting your next session just right now.